Greeting to all of my dear students. Today we will start our unit first. Incredible India. It means अतुल्य भारत, जिसमें हमारी पोइम है इंडिया माई इंडिया, रिटन बाय D.A. Tressler. Now let us start our poem. On the eve of independence, reflective eyes sit, gazing on the summer sky, dark but starlit. The sky that stares down on my country enchanting, steeped in culture and tradition, endowed with beauty, entrancing. I conjure up diverse fascinating scenes of my India, the land of my dreams. Her mighty Himalayas magnificent arise, her rolling plains verdant under azure skies, her life-giving streams that bubble and dance over pebble and boulder as they gurgle and prance. Her forest luxuriant with creeper and vine appear in their glory before these eyes of mine. तो स्टूडेंट्स, इस पेज में पोएटेस कहती हैं कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मैं गर्मी के आसमान पर देख रही हूँ अंधेरे लेकिन स्टारलिट जो आकाश मेरे देश पर झुकता हुआ है, जो कटिबद्धता और परंपरा में घिरा हुआ है, सौंदर्य से संपन्न है। मैं भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों के देश के विविध आकर्षक दृश्यों को मुग्ध करती हूँ। उसकी शक्तिशाली हिमालय भव्य उठते हैं, उसके नीले आकाश के नीचे हरे भरे मैदान हैं, उनके जीवनदायी स्रोत बुलबुला और नृत्य करते हैं, कंकड़ और पत्थर के रूप में वे गड़गड़ करते हैं, लता और बेल के साथ विलासी उसके जंगलों मेरी इन आँखों के सामने उनकी महिमा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन अब हम रीड करते हैं। द टाउनी स्ट्रिप टाइगर, द पीकॉक imperial, the chattering playful monkeys, the elephants regal, I picture them wild, protected yet free to roam mid rock, bus, grassland and tree. There is a vista of beaches with golden sands shining, the pounding surf, frothy, sparkling and glistening, the seas full of life in countless forms, the miles of brave coastlines withering many a storm. By rivers so sacred, I dreams of Asoka, a pillar of strength, a monarch of power. I follow the Buddha's path of moderation that purchase a creed gained through prayers and meditation. I remember with pride the Mughals' sublime as a marvel at their monuments, a gift for all time. At the stroke of the midnight hour, I reverie is broken by a wild clamor as they march in array before these privileged. The fiery Subhas with his nationalist corpse, the humble Mahatma with ideology gentle, the vibrant Nehru with energy indefatigable, the victors they glide past one by one. It seems the streams of warriors will never be done. Often clouds cover these stars so bright and sometime dark and dreary appears the long night. इन लाइन्स में पोएटेस कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जंगलों में घास के मैदान, झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच में ये जंगली जानवर जैसे कि चीते, धारीदार बाघ, शाही मोर, खेल कूद करने वाले बंदर, हाथी, रेगा आदि सब आज़ादी से रहें। मीलों लंबे हमारे समुद्री तट ने बहादुरी पूर्वक बहुत सारे तूफानों का सामना किया। इतनी पवित्र नदी द्वारा मैं अशोक का सपना देखती हूँ, शक्ति का एक स्तंभ, शक्ति का एक राजा। मैं बुद्ध के उदारवादी मार्ग का अनुसरण करती हूँ, जो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त एक पंथ का प्रचार करती हूँ। मुझे मुगलों का उदात्त गर्व स्मरण है, मैं उनके स्मारकों पर हमेशा के लिए उपहार आश्चर्य है। आगे पोएटेस कहती हैं कि आधी रात के समय मेरी ऊंची आवाज़ के कारण दिव्य स्वप्न टूट गया, क्योंकि उग्र नेताजी सुभाष
राष्ट्रवादी दल के साथ विनम्र महात्मा गांधी की विचारधारा और जीवंत नेहरू अथक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे थे। विजेता जो एक के बाद एक धीरे धीरे ऐसा लगता है कि योद्धाओं की धारा पूरी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर बादल चमकते हुए सितारों को ढक लेते हैं और कभी कभी अंधेरा और उदासी सारी रात दिखाई देता है। तो आगे पोएटेस नेक्स्ट लाइन में हमें बताते हैं कि बट सून द फ्रेश dawn heralds the morn, once again a new day is born. From the distance musk the muezzin raises a call to devotees to chant their praises. At the temple near the pujari will soon say the scared om with the faithful who pray. The church bells joyfully carol and ring. In reverence all his followers sings. From Gurdwara imposing tributes arise to the one whose value is above all price. My India respects all who live on the earth. We honor the one who on you gave us birth. Humbly I add my plea to the Lord above to sower my land with his infinite love. Give us, O Master, your grace divine, that we may no longer earn or pine for peace and prosperity for this country of ours, for comfort and happiness to fill our bowers. To each give enough according to his need. To each give your wisdom. For this we plead, that our granaries may be replete with grain in plenty, that in shelter and covering and knowledge we are wealthy. Teach us, O Lord, like brothers to live, your tolerance, your understanding each other to give. नेक्स्ट हमारी लास्ट लाइन है, दैट माई विजन नो मोर अ विजन मे सीम बट इंडिया माई इंडिया द लैंड ऑफ माई ड्रीम्स। इन लाइन्स में पोएटेस कहती हैं कि लेकिन शीघ्र ही सुप्रभात आ जाएगा और एक बार फिर से नया दिन आ जाएगा। दूर की मस्जिद में मोजिन उठता है और अपने भक्तों को प्रार्थना के लिए बोलता है, और नज़दीक के मंदिर में पुजारी शीघ्र कहेगा ओम। चर्च की घंटियां खुशीपूर्ण बजेगी और भक्तजन गाएंगे। गुरुद्वारों से भव्य श्रद्धांजलि उठती है जिसका मूल्य सभी मूल्यों से ऊपर है। मेरा भारत पृथ्वी पर रहने वाले सभी का सम्मान करता है। हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसने हमें जन्म दिया था। नेक्स्ट लाइन में पोएटेस कहती हैं कि मैं विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे देश पर असीमित प्यार बरसाए। हे भगवान, अपना दिव्य प्यार हमें दे दो जिससे कि हम आगे जीवन में मुरझाए नहीं। हमारे इस देश की शांति और समृद्धि के लिए हमारे धन के भंडार भरें और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त दें तथा सभी को सद्बुद्धि दें। हमारे अनाज के भंडार को फिर से भरा जा सकता है। हम भाइयों की तरह रहें, आस्वादन और ज्ञान से परिपूर्ण हों, अपनी सहनशीलता और अपनी समझ एक दूसरे को देना सिखाएं। और अंत में पोएटेस में कहना चाहती हैं कि मेरी दृष्टि केवल एक दृष्टि नहीं है बल्कि एक सुंदर सपनों का भारत है। तो बच्चों, इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपको करने हैं।